A very good morning to all of you students. We are continuing chapter number 6, learning, and we had already covered the concept of learning, the characteristics, or you can say the features of learning. After that, the paradigms of learning. In paradigms of learning, there is a classical conditioning, operant conditioning. After that, the observational learning, cognitive learning, verbal learning, concept learning, skill learning. Okay, so many forms of, so many types of learning we had already covered, and in just previous video we had covered the topic transfer of learning. Transfer of learning, that's mean the how the learned material can be facilitated the other task or the other material for learning. Okay, so there is a two type of transfer, basically the three type of the positive, negative, and the zero, and the two the transfer nature of the transfer is categorized for the two two aspects में उसे categorize कर सकते हैं, the general transfer and the specific transfers. So you had already understand the concept of general transfer and the specific transfer. There is a 5 conditions which explain the specific transfer, how the task A is facilitated or inhibited the task B. Okay, so today we start a new topic which is factor, वो factors which are facilitating the learning. ठीक है, as general. इसके पहले बिफोर आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास कंडीशनिंग द क्लासिकल एंड द ऑपरेंट हमने कुछ डिटरमिनेंट्स डिस्कस किए थे, कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे. फॉर एग्जांपल द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, द नेचर ऑफ द टास्क, ठीक है, द पर्सनालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बहुत सारे हमने फैक्टर्स, शेड्यूल, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या है सीएस और यूएस के बीच में. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हियर आर सम न्यू फैक्टर्स. ठीक है, वहां पे जब हमने बात की थी तो ओनली कंडीशन के पर्सपेक्टिव से हमने फैक्टर्स बताए थे. ठीक है, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओनली द कंडीशनिंग टाइप ऑफ लर्निंग. ठीक है, जब हम वहां बात कर रहे थे, बट नाउ द you understand all the form of learning, all the types of learning. So definitely we are discussing some new factors, some additional factor which are relevant for all kind of learning. ठीक है, जितनी भी तरह की अभी हमने लर्निंग पढ़ी, जितनी भी पैराडाइम्स हमने पढ़े, सब टाइप की लर्निंग में ये फैक्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, इस ओवरऑल लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. या लर्निंग किसी भी मेथड से हो, ठीक है, या क्लासिकल कंडीशनिंग से हो, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो, स्किल लर्निंग हो, डजेंट मैटर. हर टाइप ऑफ लर्निंग को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज factors facilitating learning. Okay, ओवरऑल बात करो तो ये फैक्टर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, बट दिस इज नॉट अ लिमिट. इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्स्ट बुक वी आर डिस्कसिंग ओनली 3 मेजर फैक्टर्स विच आर द reinforcement, the type of reinforcement, that's mean the continuous versus partial reinforcement, then motivation and the preparedness for learning, yani mental set. Okay, so first factor is continuous versus partial reinforcement. Second is motivation, and the third one is preparedness for learning. These 3 major factors जिसे हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let's start this topic. So in the preceding section, we examine the specific determinants of learning, such as contiguous presentation of CS and US, and in classical conditioning, number, amount, and delay of reinforcement in operant conditioning, status and attractiveness of models in observational learning, procedure in verbal learning, and the
nature of rules and perceptual features of object and event in concept learning. ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर हर टाइप ऑफ लर्निंग की कुछ डिटर्मिनेंट्स थे. Now we shall discuss some general determinants of learning. This discussion is not exotic, rather it deal with some silent factors only which are found very important. ठीक है, so first is continuous versus partial reinforcement. ठीक है, continuous reinforcement क्या होता है और partial reinforcement क्या होता है, you already understand the concept of these two. ठीक है, continuous that means each and every trial should be reinforced. ठीक है, जितने भी ट्रायल्स है, जितने भी टाइम पे वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिजायरेबल बिहेवियर शो करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, उतने टाइम पे उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट. ठीक है, एक भी पॉइंट पे आप गैप नहीं कर रहे हो. एंड इन द पार्शियल रीइंफोर्समेंट सम ट्रायल्स शुड बी रीइंफोर्स्ड बट सम शुड बी नॉट. ठीक है, कुछ ट्रायल्स रीइंफोर्स किए जा सकते हैं और कुछ ट्रायल्स में भी नहीं किए जा सकते हैं. नाउ इन पार्शियल रीइंफोर्समेंट देयर आर आल्सो सो मेनी कैटेगराइजेशन. उसके अंदर भी बहुत सारी जो कि कैटेगराइजेशन है. फॉर एग्जांपल फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, फिक्स वेरिएबल शेड्यूल और द पार्शियल वेरिएबल शेड्यूल. ठीक है, इंटरवल वेरिएबल शेड्यूल, बहुत सारे उसके अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं. इन एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग the experimenter can arrange to deliver reinforcement according to a specific schedule. So in the context of learning, two kind of schedules, namely continuous and partial, have been found very important. In continuous reinforcement, the participants is given reinforcement after each target response, and this kind of schedule of reinforcement produce a high rate of response. Okay, high rate of responding. However, once the reinforcement is the response rate decrease very quickly and the responses acquired under this schedule tend to extinguish. ठीक है, so that means जितनी जल्दी, जितनी quickly कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के थ्रू लर्निंग होती है, एक्विजिशन होता है किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का, बिहेवियर का, उतनी ही जल्दी ये एक्सटिंक्शन भी हो जाता है इसका. ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत इजीली हम लर्न करते हैं. लर्निंग जो एक्विजिशन ट्रायल होते हैं, हमारे लर्निंग ट्रायल्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. बहुत क्विकली पैटर्न हम असेस कर पाते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होता है कि किस तरह से हमें बिहेवियर करना है कि हमें डिजायरेबल बिहेवियर होगा वो, और उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगा. ठीक है, सो डेफिनेटली वो जितनी क्विकली इजीली लर्न होता है उतनी ही क्विकली, उतनी ही इजीली इसको एक्सटेंशन होने के, इसको एक्सटिंग्विश होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, बट स्टिल दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. ठीक है, ये बहुत बेस्ट शेड्यूल होता है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल लर्निंग के लिए. सिंस organism is getting reinforcement on each trial, the effectiveness of the reinforcement is reduced. ठीक है, फर्स्ट ये भी फैक्टर हो सकता है कि जब आप हर ट्रायल को रीइंफोर्स कर रहे हो एंड व्हेन द इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड, तो उसका जो एक डिस्पेरिटी होती है उसकी, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए उसकी जो इफेक्टिवनेस है उस रीइंफोर्समेंट की, वो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो इन सच शेड्यूल वेयर रीइंफोर्समेंट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, some responses are not reinforced, hence they are called partial or intermittent reinforcement. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ reinforcement जहाँ पे हर ट्रायल को नहीं reinforce किया जाता, which is known as partial or intermittent reinforcement. And there are several ways in which one might reinforce responses according to an intermittent schedule. So it has been found that partial reinforcement schedule often produce very high rate of responding, and according to ratio in the kind of schedule, an organism often makes several responses that are not reinforced. Therefore, it becomes difficult to tell when a reinforcement has been discontinued and completely and when it has merely been delayed. ठीक है, so क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो कंटिन्यूअस बनी रहती है. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ये नहीं फाइंड आउट कर पाता है कि पता नहीं कब रीइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा या डिले रीइंफोर्समेंट मिलेगा या उसे रिमूव कर लिया जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूअस डिजायरेबल बिहेवियर जो भी उससे वांटेड रहता है वो कंटिन्यूअसली शो करता है. ठीक है, तो ये बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक है पार्शियल शेड्यूल की. तो पार्शियल शेड्यूल में भी इंटरवल शेड्यूल, रेशियो शेड्यूल एंड द फिक्स
शेड्यूल होते हैं, ठीक है. फिक्स इंटरवल हो सकता है, फिक्स रेशियो हो सकता है. सो बेसिकली द फिक्स शेड्यूल, द वेरिएबल शेड्यूल एंड द इंटरवल शेड्यूल, ठीक है, रेशियो शेड्यूल, ठीक है. सो ये सारे शेड्यूल्स हैं जो हम प्लान करते हैं. जब हम रेशियो शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा और अप्रोप्रिएट शेड्यूल होता है. इसके बेसिस पे जो लर्निंग होती है वो काफी देर तक होती है, काफी स्ट्रांग होती है, और इसके एक्सटेंशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसको कंटिन्यूअस एक्सपेक्टेशन रहती है रीइंफोर्समेंट की, ठीक है. बिकॉज दे डोंट नो द पैटर्न, वो फाइंड आउट नहीं कर पाता कि कब कौन से रिस्पॉन्स पे हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स करता रहता है. Therefore, it become difficult to tell when reinforcement has been discontinued completely and when it has merely been delayed. So, when reinforcement is continuous, it is easier to tell when it has been discontinued, and this kind of differences has been found crucial for extension. And it has been found that extension of a response is more difficult following partial reinforcement than following continuous reinforcement. ठीक है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ रिसर्च, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ स्टडीज, ये फाइंड आउट हुआ है कि जो कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल के थ्रू जो लर्निंग होती है, जो जिन बिहेवियर्स का एक्विजिशन किया जाता है, उनका एक्सटेंशन इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, क्विकली हो जाता है. जबकि जो रिस्पॉन्सेस पार्शियल शेड्यूल से सीखी जाती है, पार्शियल शेड्यूल से जिनका एक्विजिशन होता है, उनका जो है कि एक्सटेंशन के उनके जो चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं. So it has been found that extension of a response is more difficult following partial reinforcement than following continuous reinforcement. In the fact that the response acquired under partial reinforcement are highly resistance to extension is called partial reinforcement effect. ठीक है, हमने रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन का फिनोमेना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑलरेडी समझा है. सो उसी से रिलेटेड है, व्हिच इज आल्सो नोन एज पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट. ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट की वजह से हमारा जो है एक्सटेंशन का रिस्ट्रिक्शन होता है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन टू एक्सटेंशन ये फिनोमेना फॉलो करता है. So this is the first point which explain as a factor facilitating learning. अगर हम continuous learning से learn करते हैं तो उसका extension का chances ज़्यादा रहता है, but at the same time इससे बहुत ही quick learning होती है. जबकि partial learning से partial reinforcement schedule को अगर हम introduce करते हैं in learning तो definitely इससे acquisition trials ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा time लगता है, ज़्यादा effort लगता है learning में, but at the same time वो जो learning होती है वो stable होती है, strong learning होती है, deep learning होती है. So उसका extension जल्दी नहीं हो पाता, बल्कि resistance to extension का phenomena introduce होता है. ठीक है, so this is the first factor. Now move to the second one, which is motivation. All living organisms have survival need and human being. So in addition have growth need. Motivation is a mental as well as a physiological state which arouses an organism to act to fulfill the current need. ठीक है, मोटिवेशन जो होता है whether it is a psychological or biological, this is very important for organism. ठीक है, and in animals there is only a biological motivations, biological needs, but in human beings there is some psychological needs, some growth needs also. ठीक है, आपने अभी वो मैस्लो की थ्योरी नहीं पढ़ी, आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे मोटिवेशन वाले चैप्टर में. सो डेफिनेटली जो मोटिवेशन होता है वो हमें एक अंदर से एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इननेट एनर्जी होती है हमें सर्वाइवल की. ठीक है, सपोज एक हंगर है, हंगर इज दी मोटिवेशन. ठीक है, फूड से सेटिस्फाइड होगा, वो एक नीड जनरेट हो रही है. सो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है हमारी बॉडी की, जो हमें एक्टिवेट कर रही है, हमें एनर्जाइज कर रही है उसके टुवर्ड्स, उस गोल को अचीव करने के लिए. क्या गोल? फूड. ठीक है, फूड को अचीव करने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, हमें कंटिन्यूअस एक्टिव रख रही है, वो मोटिवेशन है. वो इंटरनल फोर्स विच इज एनर्जाइज अस इज बेसिकली नोन एज मोटिवेशन. ठीक है, और किसी भी इंडिविजुअल के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सर्वाइवल नीड होती है ये उसकी. जब तक उसका मोटिवेशन फुलफिल नहीं होता है, ग्रेटिफाई नहीं होती उसकी नीड, उस बराबर वो एक्टिवनेस के लेवल पे रहता है और एक्टिव रहता है. ठीक है, अपनी उसकी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है. सो मोटिवेशन एनर्जाइज एन ऑर्गेनिज्म टू एक्ट vigorously for attaining some goals. Such acts
persist until the goal is attained and the need is satisfied. मतलब वो जो एक्टिवनेस है, वो जो एक्टिविटी है, वो कंटिन्यूअस बनी रहती है तब तक जब तक कि वो गोल अचीव नहीं हो जाता, जब तक वो गोल हम अचीव नहीं कर सकते, जब तक हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, हमारे जो नीड है उसे हम ग्रेटिफाई ना कर लें, तब तक हम कंटिन्यूअस एक्टिव रहते हैं, एक अराउजल लेवल हमारा बना रहता है. सो दिस इज द मोटिवेशन. मोटिवेशन इज अ prerequisite for learning. And why does a child forage in the kitchen when the mother is not in the house? He or she does so because he or she needs sweets to eat, for which he or she is trying to locate the jar in which sweets are kept. ठीक है. So definitely this is the question कि क्यों एक child जब उसकी मदर उस घर पे नहीं है वो क्यों किचन की तरफ मूव करता है, किचन में जाता है और कुछ फाइंड आउट करता है. डेफिनेटली उसकी नीड रहती है स्वीट खाने की. ठीक है. सो डेफिनेटली वो मोटिवेशन से एनर्जाइज रहता है और दैट्स व्हाई वो किचन में जाता है और वो जार फाइंड आउट करता है जिसमें कि स्वीट्स केप्ट है. सो डेफिनेटली ये कुछ तो चीज है इंटरनली जो इसे एनर्जाइज कर रही है, उसे मोटिवेट कर रही है. ठीक है. सो दिस इज द मोटिवेशन. Because he or she needs sweet to eat, for which he or she is trying to locate the jar in which sweets are kept. So during the course of foraging, the child learn the location of the jar. So a hungry rat is placed in a box. The animal forages in the box for food. Incidentally, it presses a lever and food drop in the box. So while with a repeated experience of such activity, the animal learn to press the lever immediately after the animal is placed there. ठीक है. That's mean जैसे जैसे रिपीटेड एक्सपीरियंस हुआ उसने ये लर्न किया. बट क्यों किया? बेसिक नीड उसकी क्या थी? फूड की थी. सो इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द बॉक्स, डेफिनेटली वो फूड के नीड की वजह से, फूड को सर्च करने के ऑपरेशन के बेसिस पे उसने रैंडम एक्टिविटी की. ठीक है. कुछ ऐसी एक्टिविटी की विच इज नॉट एप्रोप्रिएट, इंसिडेंटली उसने लीवर प्रेस किया. ठीक है. सो डेफिनेटली ये एक्टिविटी वो क्यों परफॉर्म कर रहा था वो रैट? डेफिनेटली क्योंकि वो हंग्री था. इफ द रैट इज सेटिस्फाइड, इफ द रैट इज फुल स्टमक, वो उसका पेट भरा होता, डेफिनेटली वो रेस्ट करता, वो सर्च नहीं करता फूड को. ठीक है. और फूड नहीं सर्च करता तो डेफिनेटली वो कुछ रैंडम एक्टिविटी भी नहीं करता, कोई बिहेवियर नहीं शो करता. ठीक है. बट वो क्योंकि एनर्जाइज था, बिहेवियर कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो हंग्री था. ठीक है. वो हंगर की मोटिवेशन से एनर्जाइज था. दैट्स व्हाई उसने कुछ रैंडम रिस्पॉन्सेस किए एंड इंसिडेंटली उसने लीवर प्रेस किया. So have you ever asked yourself why you are studying psychology and other subjects in class 11? This is the question. So you are doing so to pass with good mark or grade in your final examination, and the more motivated you are, the more hard work you do for learning. So your motivation for learning something arises from two sources. You learn many things because you enjoy them. ठीक है. That's mean intrinsic motivation, internal motivation, or they provide you the means for attaining some other goals. That's mean the extrinsic motivation or the environmental motivation. ठीक है. External motivation basically. ठीक है. So definitely जब आप ये बात करते हो कि आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन. So definitely या तो आप इसलिए पढ़ रहे हो because you interested in psychology, because you want to study psychology. ठीक है. Simply you want to explore the psychology world. So definitely this is the internal motivation, जहाँ पे internally आप motivated हो, internal factors से motivated हो, and अगर आप उसके थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू आप अदर गोल्स को अचीव करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल द अचीवमेंट गोल. ठीक है. द फाइनेंशियल गोल आप कह सकते हो कि द स्टेटस और द पॉपुलैरिटी. ठीक है. उसकी अगर आप उसके लिए करना चाहते हो कि आप साइकोलॉजी पढ़ोगे फिर आगे आपका करियर बनेगा अच्छा और यू बिकम अ साइकेट्रिस्ट और द साइकोलॉजिस्ट, सो यू गेन सम मनी. ठीक है. सो डेफिनेटली दिस इज द एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहाँ पे अदर गोल्स को सेटिस्फाई कर, अदर गोल्स को फुलफिल करने के लिए आप इस गोल को अचीव कर रहे हो. ठीक है. दिस इज द मोड ऑफ द अचीविंग अदर गोल्स. ठीक है. ये एक मोड की तरह यूज होगा. और अगर आप सच में इसमें इंटरेस्टेड हो, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन. ठीक है. सो डेफिनेटली जो मोटिवेशन होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस. ठीक है. यही वो फैक्टर है जिसके बेसिस पे हमारा सारा बिहेवियर गवर्न होता है. सारा बिहेवियर, हमारी जितनी भी एक्टिविटी है वो किसी न किसी मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस होके ही हमारी एक्टिविटी होती है. सो डेफिनेटली किसी भी चीज की लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको मोटिवेटेड होना चाहिए. ठीक है. इसीलिए तो
हमेशा टीचर्स कहते हैं कि इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सब्जेक्ट, सो आपको पढ़ने का फायदा नहीं है। आपको टीचर कितना भी प्रेशराइज करे, पेरेंट्स कितना भी प्रेशराइज करे, कितने भी पुअर आपके नंबर आए, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आपका मोटिवेशन नहीं होगा नंबर्स के लिए, मार्क्स के लिए, स्टडी के लिए, नॉलेज के लिए, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। सो बेसिकली आपके मोटिवेशन लेवल पे वर्क करने की जरूरत होती है, आपके मोटिवेशन लेवल को हाई करने की जरूरत होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, एनिमल्स पे जब हमारा रिसर्च होता है, सो वहां पे हम बायोलॉजिकल मोटिवेशंस को लेते हैं, हंगर है, थर्स्ट है, ठीक है, स्लिप है, इन सारे फैक्टर्स को लेके हम स्टडी करते हैं, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि अब जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो नॉट ओनली बायोलॉजिकल बल्कि हम साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस को भी कंसिडर करते हैं और उनको भी यूज करते हैं। ठीक है, सो मोटिवेशन इज मस्ट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो लर्निंग का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो पाएगा, लर्निंग नहीं हो पाएगी अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो। अगर वर्बल लर्निंग की बात करो तो वहां पे ज्यादा ह्यूमन बींग्स की बात हुई, तो वहां पे देखो अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो लर्न करने के, तो आपको 10 बार भी वो ट्रायल्स दिए जाएंगे, 10 ट्रायल्स, 12 ट्रायल्स भी दिए जाएंगे, तब भी आप लर्न नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज यू आर नॉट मोटिवेटेड। ठीक है, सो डेफिनेटली जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होगे आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो दिस इज द मोटिवेशन। मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग, मतलब कि मेंटल सेट, आप कितना रेडी हो, प्रिपेयर हो आप कितना लर्निंग के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेडीनेस, प्रिपेयरनेस, या फिर कह सकते हो कि आप कितना ज्यादा मेंटल सेट है, आपको कितना ज्यादा आपको करना चाहते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर। So the member of different species are very different from one another in their sensory capacities and response abilities. The mechanism necessary for establishing associations such as SS or SR also vary from species to species. It can be said that species have biological constraint on their learning capacities. So the kind of SS or SR learning an organism can easily acquire depends on the associative mechanism, and it is genetically endowed with a prepared for. So a particular kind of association learning too easy for ape or human beings, but may be extremely difficult and sometimes impossible for cats and rats. So it implies that one can learn only those associations for which one is genetically prepared. ठीक है, यहाँ पे हम जेनेटिक प्रिपेयरनेस की बात कर रहे हैं। जेनेटिक प्रिपेयरनेस दैट मीन हमारा ओरिएंटेशन, ठीक है, हमारी कैपेसिटी, जेनेटिक फीचर्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हियरिंग पावर एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ स्पीशीज है, कुछ एनिमल्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी जो विजुअल कैपेसिटी है वो अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो तो हमारे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जो इसकी बनावट है, वो डेफिनेटली अदर स्पीशीज से बहुत डिफरेंट है। दैट्स व्हाई हम लैंग्वेज यूज करते हैं। कम्युनिकेशन अदर स्पीशीज में भी है, ठीक है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, बट यूजिंग ऑफ लैंग्वेज, यूजिंग ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज विच आर गवर्न बाय रूल, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक ही लिमिटेड है। ठीक है, क्यों हम किसी एनिमल्स को उसी सिचुएशन में रख के वर्बल लर्निंग नहीं करा सकते, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो एक स्पीशीज के मतलब कंट्रोल में है, मतलब वो उसी तक वो लिमिट है, वो उसकी लिमिटेशन है, उससे बियॉन्ड वो नहीं कर सकता। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात करो तो हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है हर सेंस ऑर्गन्स की। हमने सेंसरी मोडालिटी में लिमिटेशंस की बात की थी। सो विजुअल लिमिटेशन, ऑडिटरी लिमिटेशंस, टैक्चुअल लिमिटेशंस, सो डेफिनेटली हमारे भी सेंस ऑर्गन्स की कुछ लिमिटेशंस है। उसके बियॉन्ड अगर चीजें हैं तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम उसको नहीं जो कि एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे उसमें। सो प्रिपेयरनेस फॉर लर्निंग की बात यही कह रहा है कि हर एनिमल की, हर स्पीशीज की कुछ कैपेसिटीज है, उसकी अकॉर्डिंग अगर वो लर्निंग करेगा तभी कर पाएगा। इवन अगर हम ह्यूमन बींग्स की सिर्फ बात करें, सिंपल फिनोमेना से ऐसे समझो कि अगर सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो जेनेटिकली हमारा कुछ आईक्यू लेवल डिसाइडेड है ऑलरेडी। अब आप कंपेयर करो कि अगर इमेजिन करो, ठीक है, कि कोई ऐसा चाइल्ड है जिसके आईक्यू लेवल बहुत लो है और हम उसे स्पेस साइंस पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो इज दैट पॉसिबल? वेरी लो आईक्यू लेवल के चाइल्ड को अगर हम कितना भी एटमॉस्फेयर दे दें, कितना भी उसको हम लर्निंग करा लें, ही कैन नॉट एबल टू लर्न स्पेस साइंस।
ठीक है, या रॉकेट साइंस, या फिर अगर इंजीनियरिंग भी बात करें तो डेफिनेटली अगर लो आईक्यू का चाइल्ड है तो वो नहीं कर पाएगा. सो दिस इज द लिमिटेशन, जेनेटिक लिमिटेशन है ये. एक इसमें इन्वायरमेंट का और लर्निंग का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है. नेचर है, नर्चर की जगह अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका नर्चर का है, नेचर का नहीं है. सॉरी, नेचर का है, नर्चर का नहीं है. ठीक है, सो दैट्स मीन ये उसकी जेनेटिक प्रिपेयरनेस है. ठीक है, वो कितना ज्यादा कैपेसिटी है जेनेटिकली उसके में अक्वायर करने की, नॉलेज अक्वायर करने की, लर्निंग की, ये प्री डिसाइडेड होती है, जेनेटिक होती है, इननेट होती है. ठीक है, कि कितना ज्यादा, कितना मैक्सिमम अमाउंट में आप चीजें इन्वायरमेंट से ग्रैस्प कर पाओगे, इन्वायरमेंट से लर्न कर पाओगे. तो ये चीजें प्री डिसाइडेड है ड्यू टू जेनेटिक्स. और हर स्पीशीज की अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग टाइप ऑफ लर्निंग वो कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स की तरह रैट, चिंपैंजीज, कैट, हर ऑर्गेनिज्म, हर जो है कि एनिमल सेम वे में उस टाइप की लर्निंग नहीं कर सकता जिस टाइप में ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. इवन अगर एनिमल्स की बात करो तो कैट की जो कैपेसिटी है, रैट की जो कैपेसिटी है और चिंपैंजीज की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उनके जो कि जेनेटिक डिस्पोजिशन में, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस हैं. ठीक है, स्नेक ज्यादा दूर तक की चीजों को देख सकता है. जो डॉग है वो ज्यादा उसकी जो स्मेल पावर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है उसके बहुत ज्यादा एक्टिवेट है. ठीक है, इस तरह अगर हम आउल की बात करें तो वो नाइट विजन उसका हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है. ठीक है, वो इवन बिल्कुल डार्क में भी वो देख सकता है. ही कैन एबल टू सी इन अ वेरी डार्क प्लेस. सो डेफिनेटली उसकी जो सेंसरी मोडालिटीज है, जो कैपेसिटी है वो जेनेटिकली है, उसकी स्पीशीज से रिलेटेड है. ठीक है, सो वही बात हो रही है कि लर्नेस प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग. ठीक है, जेनेटिक प्रिपेयर्डनेस. ऐसे ही साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस भी हो सकती है कि हम कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है, कितना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट लेवल है, कितना ज्यादा हमारा मेंटल सेट है, हम कितना ज्यादा डेस्परेट है, रेडी है लर्निंग के लिए. अगर हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कि फॉर एग्जाम्पल आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी टीचर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि बी प्रिपेयर, यूटी की कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है. सो डेफिनेटली आप लोग प्रिपेयर हो लर्निंग के लिए. और अगर आप पहले की बात करो तो पहले शायद आप थोड़ा लेजीनेस दिखा रहे थे, थोड़ा सा आप डल थे, उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे. बट व्हेन यू सी कि ये यूटी स्टार्ट होने वाला है, आपकी प्रिपेयरनेस, आपकी रेडीनेस डेफिनेटली हाई हो जाएगी. आप स्टार्ट कर दोगे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो, ज्यादा प्रिपेयर हो. ठीक है, आपकी नीड जो है वो अभी हाई लेवल पे आ गई है. ठीक है, तो ये फिनोमेना बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली दोनों एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करता है हमारी प्रिपेयरनेस को. So the concept of preparedness may be best understood as a continuum or dimensions, on one each of which are those learning tasks or associations which are easy for the member of some species, and on the other end are those learning tasks for which those members are not prepared at all and cannot learn them. So in the middle of the continuum for those tasks and associations for which the number of neither prepared not unprepared, so they can learn such tasks but only with great difficulty and persistence. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कॉन्टिन्यूम की बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज द कॉन्टिन्यूम. ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये 0 पोल आ जा रहा है, ये 10 नंबर आ जा रहा है, इमेजिन. ठीक है, सो डेफिनेटली हमारे जो मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज हैं वो लाई करेंगे सेंटर में. किसी भी स्पीशीज के लिए ये वो टास्क है इसमें जिसमें वो हर स्पीशीज जो है वो कर पाएगा. ठीक है, ये एवरेज लेवल है. ठीक है, बट जब हम इसकी लेवल की और इस लेवल की बात करें सो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयरनेस की जरूरत होगी, तभी वो इंडिविजुअल, वो स्पीशीज, वो ऑर्गेनिज्म वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्टिन्यूम वी एक्सप्लेन द प्रिपेयर्डनेस. Okay, so these three factors basically facilitate the learning process, and this is all about today. Today you studied about the factor facilitating learning. There are 3 type of factors: the continuous versus partial reinforcement, level of motivation or the simply motivation, and the preparedness for learning. In the preparedness for learning we are talking about the genetic preparedness, biological preparedness. Okay, and in the next class, in the next video, we will discussing about the learner. That's mean the learning style, different kind of learning style. After that, the learning disability and the application of learning principles. So definitely ये chapter जो आपका है ये complete होने वाला है. After that, chapter 7 हम start करेंगे, या मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चैप्टर 6 को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करें और चैप्टर 7 बाद में कर लें, बिकॉज आपके यूटी की डेट बहुत जल्दी आने वाले हैं.
Okay, so student, this is all about today. Today you studied about the factor facilitating learning and in the homework आपको ये chapter complete करना है. देखिए ये chapter के notes complete करने हैं और मुझे mail ID पे mail करना है. This is all about today. Thank you so much students.